Very good morning, guys. Once again, I, Dr. Rahul Mishra, welcome you all in my YouTube channel. So, in my previous videos, I have uploaded the videos of engineering drawing. Basically, we are dealing with the subject engineering drawing right now. So, in my previous videos, I have uploaded many videos on scales, okay, and to be more specific on plane scales. We have solved several numericals over there. Now we are starting diagonal scales, isn't it? What is the difference between plane scale and diagonal scale? I have explained all those things. Please, it's my humble request that before watching this video, please go and watch my previous videos on scales, okay? Then only you can watch these videos. Then only you will understand. So today we will be dealing with diagonal scales. So as we all know that diagonal scale is nothing but the advancement of plane scale, isn't it? Means in plane scale we can measure only up to 2 units, but here we can measure up to 3 units. Okay. So how we can do this stuff we will see now. Okay. Let us take one example. Construct a diagonal scale. See, it is written over here of 3 by 200. 3:200. This is the RF showing meter, decimeter and centimeter. So it is given over here that there may be 3 units, meter, decimeter and centimeter, but we have to check it also. To measure up to 6 meter, RF is given, a maximum length is given, show a length of 4.56 meter. See, we have to check from here. आपको जो represent करना है उससे आपको check करना है. So what we have to represent? 4.56. We know that before decimal everything is 1 unit. After decimal, one digit is one unit. So this is 1 unit and this is 1 unit. So total 3 units. So this is 3 unit scale, and what are those 3 units? Meter, decimeter and centimeter. Very clear now? And it is also written, I have said that when it is written in decimal, then the unit must be the larger unit. So 4.56 meter. We know that meter is greater than decimeter and centimeter both. So the largest unit is meter. That is why it is written over here meter. It is also correct. And the unit of maximum length must be also the larger unit. So it is meter. Again it is correct. Meter is the larger unit. So all things are correct in this question. Now we can proceed. RF is 3 by 200. Maximum length is 6 meter. आपको जो शो करना है वो 4.56 मीटर. इसका मतलब क्या है? 4 मीटर, 5 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर. सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा. हमेशा ये सीक्वेंस होगा. So 4 meter, 5 decimeter, 6 centimeter. Now we have to calculate the length of drawing. All things are similar, just like the plane scale. Length of drawing is what? RF into maximum length means 3 by 200 is RF into maximum length is 6 meter. But we have to convert this meter in centimeter. That's why I have multiplied by 100. So now it is in centimeter. अगर आप solve करेंगे तो आएगा 9 सेंटीमीटर. सेम है, जैसे लेंथ ऑफ ड्राइंग आया आपका, जो प्लेन स्केल में करते थे वही करना है. लेंथ ऑफ ड्राइंग आया, आपको 9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेना है. जितना लेंथ ऑफ ड्राइंग आया, जितना आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग आया उतना लंबा आप एक लाइन ड्रॉ कर लोगे 9 सेंटीमीटर की, और उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे? जितना मैक्सिमम लेंथ है. मैक्सिमम लेंथ कितना है? 6. तो देखिए मैंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया. 1 2 3 4 5 6. 6 इक्वल पार्ट हो गया. पहले को छोड़ना है, उसके बाद तो 0 लिखना है, तो यहां 0 लिख दिया. देन 1 देन 2 3 4 5. अब हमको क्या पता है कि 0 के इधर होता है बड़ा यूनिट. सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? मीटर. मैंने लिख दिया. फिर 0 के इधर होगा उससे छोटा यूनिट. तो अब मीटर के बाद डेसीमीटर है, फिर सेंटीमीटर है. हमको सीक्वेंस पता है क्या होता है? मिलीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर, देन मीटर, देन डेकामीटर, देन हेक्टामीटर, देन किलोमीटर. ये सीक्वेंस होता है. तो अभी हमारे पास जो यूनिट है कौन कौन सा है? मीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है. सबसे बड़ा ये है, दिस इज द लार्जेस्ट. देन उसके बाद ये बीच वाला, देन दिस इज द स्मॉलेस्ट. तो सबसे पहले हमने 0 के इधर सबसे लार्जेस्ट यूनिट को लिख दिया मीटर. उसके बाद बीच वाले को लिखेंगे क्या है? डेसीमीटर. तो 0 के इधर हम क्या लिखेंगे? डेसीमीटर. और अब आपको वर्टिकल लाइन का महत्व है. प्लेन स्केल में इस वर्टिकल का कोई महत्व नहीं था, इसको आप कितना भी ले सकते थे, है कि नहीं? लेकिन अब इसका महत्व है. अब आपको इसको कुछ, इसका अभी भी उस हाइट का कोई लेना देना नहीं है आपसे. आप कितना भी हाइट ले सकते हो, लेकिन अब आपको इसको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे अपन क्या करते थे? 0 के इधर क्या करते थे? 2 यूनिट आया. अब इधर मीटर है, इधर डेसीमीटर है. तो मीटर और डेसीमीटर में कितना गैप होता है? यहाँ सबके बीच में 10-10 का गैप है, हमको पता है कि नहीं? तो मीटर और डेसीमीटर में कितना गैप है? 10 का गैप है. तो हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 10 इक्वल पार्ट्स कर दिया. देखिए मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने.
ये हो गया 10। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना आपको आता है, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, है ना। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब सिमिलरली आपको ये वर्टिकल को भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी अब यूनिट है, मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया। अब सबसे छोटा जो होता है वो वर्टिकल में रहता है, सेंटीमीटर। देखिए मैंने लिखा है, ऐसे आपको लिखना है सेंटीमीटर। अब फिर इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, सेम लॉजिक। डेसीमीटर और सेंटीमीटर में कितने का गैप है, डेसीमीटर और सेंटीमीटर में भी 10 का गैप है। तो इस वर्टिकल लाइन को भी आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कितना भी ले सकते हो इस लाइन को, लेकिन 10 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए। तो जैसे आप इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हो, एक एक्यूट एंगल बनाते हो, फिर ये छोटे वाले के लिए एक और एक्यूट एंगल बनाते हो, करते हो ऐसा। सिमिलरली यहां भी ऐसे करना है, एक एक्यूट एंगल इधर बना देना, ये एक्यूट एंगल इधर बना दिया अपन। एक्यूट मतलब 90 से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। तो ये एक्यूट एंगल बना दिए। इसको भी 10 पार्ट में करना है। राउंडर में कोई एक नाप ले लो, यहां पे रखो, पहला आर्क काटो, सेम यहां पे रख के दूसरा काटो, उतना ही, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जो लास्ट वाला आएगा उसको लास्ट पॉइंट से जोड़ दो, जितना भी आपने लाइन का लेंथ लिया होगा। वर्टिकल लाइन आप कितना भी लंबा बना सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको अपन को अभी कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 10 इक्वल पार्ट्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे फीट रहता, यहाँ पे इंच रहता, कराऊंगा वो क्वेश्चन, यहाँ फीट रहता, यहाँ इंच रहता, तो फीट और इंच में कितना गैप होता है, 1 फीट बराबर 12 इंच, 12 इंच। उस समय आप इस वर्टिकल लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, 12 इक्वल पार्ट्स, इजंट इट। तो यही कॉन्सेप्ट है। फिर वैसे ही करना है, 10 पार्ट्स करना है, तो फिर पैरेलल पैरेलल ड्रॉ करते हैं उसको, ठीक है, जैसा अपन नीचे करते थे, सेम लॉजिक है। ये देखिए, इसको ऐसा बना दिया आपने। तो अब इसके बाद ये सारे लाइन को जोड़ दिया पैरेलली, आपने एक जोड़ा इसको, उसके बाद पैरेलली सबको जोड़ते गए, तो देखो आपको यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता गया, ये आपको मिलता गया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। यहाँ भी लिखना है ऐसे, एक छोड़ के 1 2 3 अप टू 10, कंप्लीट है आपका स्केल। अब उसको जोड़ने का एक तरीका होता है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको वर्टिकली नहीं जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, आप अब ये ऊपर का वर्टिकल बना लिए, फिर एक रेक्टेंगल बना लो, रेक्टेंगल बना के आपके स्केल को बना लो, बंद कर लो। ये जीरो से वर्टिकल लाइन बनाया अपन ने, यहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से वर्टिकल, और ये तो वर्टिकल है, ये लास्ट वाला। उसके बाद ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं वर्टिकल में, ये सभी वर्टिकल पॉइंट्स से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। देखो मैंने ड्रॉ कर लिया, मिनी ड्राफ्टर सेट कर लो और हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। तो जैसा 10 से बनाया ये हॉरिजॉन्टल, वैसे 9 से भी हॉरिजॉन्टल बनेगा लास्ट तक, 8 से बनेगा लास्ट तक, 7 से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा लास्ट तक, 6 से बनेगा लास्ट तक, ऐसे करते करते पूरा 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन ये लास्ट यहां तक आ गया, हॉरिजॉन्टल बन गया। अब ये जो खंड है पहले वाला, इसको जो आप जोड़ोगे ना, इसको डायगोनली जोड़ना है। इसी कारण ये स्केल का नाम होता है डायगोनल स्केल। अभी तक आपने जो भी जोड़ा था ये सब वर्टिकल लाइन से, ये पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो डायगोनल क्या हुआ, इसको जोड़ोगे आप डायगोनली। अब ध्यान देना कैसे बताना, यहां तक तो हो गया पूरा काम। अब ये बस जोड़ना है आपको डायगोनली। तो कैसे जोड़ोगे, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, ये आपने 10 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, आपको तरीका पता है कैसे करना है। अब जैसे आपने डिवाइड कर लिया, आपको ये पॉइंट्स मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। अब आपको क्या करना है, मिनी ड्राफ्टर को रख के ये 1 वाला जो पॉइंट है, लाइन नहीं खींचना वर्टिकल, आपको ये 1 वाले पॉइंट को स्केल से ऐसे करके आप नापोगे, आपकी शीट में आ जाएगा पूरा। तो यहां रखोगे और ये 1 जहां आया उसके पैरेलली ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लोगे 1, फिर वैसे 2 पे रखोगे, ऊपर मार्क कर लोगे 2, फिर 3 पे रखोगे, ऊपर मार्क कर लोगे 3, 4 पे रखोगे, ऊपर मार्क करोगे 4, 5 पे रखोगे, ऊपर मार्क करोगे 5, 6 पे रखोगे ये 6, 7 पे रखे 7, 8 पे रखे 8, 9 पे रखे 9। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लाइन की लेंथ जो नीचे है 0 से लेकर 10 तक, उतना ही ऊपर भी होगा 0 से लेकर 10। तो यहाँ आपने जैसा डिवाइड किया वो सारे पॉइंट्स का ऊपर रिप्लिकेट कर लो, बस दैट्स इट। इसको इधर ट्रांसफर किया अपन ने वर्टिकल लाइन नहीं बनाया, अपन केवल क्या किए, 1 से ऊपर का 1 को जोड़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस ये पॉइंट्स को ऊपर लिया अपन, क्योंकि जोड़ना आपको 1 से 1 नहीं है, जोड़ना है 0 से 1। नीचे के 0 को ऊपर के 1 से जोड़ दिया मैंने, देख लो ध्यान से, ये 0 है, ये 0 है, दिख रहा है आपको, देखो ये 0 वाले पॉइंट है। अब इस 0 को मैं डायगोनली जोड़ा हूं, देखो 1 से, वर्टिकल लाइन से नहीं जोड़ा। फिर ये 1 को मैंने जोड़ दिया डायगोनली, देखो 2 से, फिर 2 को मैंने डायगोनली जोड़ा ऊपर के 3 से। यही गलती होता है, ध्यान से, नीचे के 3 को मैं ऊपर के 4 से जोड़ रहा हूं, देन 4 को मैं जोड़ दिया किससे, 5 से, 5 को जोड़ दिया ऊपर के 6 से, 6 को जोड़ दिया ऊपर के 7 से, 7 को जोड़ दिया ऊपर के 8 से,
8 को जोड़ा ऊपर के 9 से और 9 को जोड़ा ऊपर के 10 से, ये 10। क्लियर? तो ऐसा डायगोनली जोड़ना है, नीचे का 1 ऊपर के 2, नीचे का 0 ऊपर का 1, नीचे का 1 ऊपर का 2, नीचे का 2 ऊपर का 3, ऐसे करते करते नीचे का 9 ऊपर का 10। उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ऊपर का 0 और नीचे का 1 जोड़ दिए, गलत नहीं होगा ऐसा। नीचे 0 ऊपर 1, नीचे 1 ऊपर 2, ये आपका जो स्लैंट है वो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा पैरेलली बनता रहेगा। ठीक है, ये सही है। आपने अगर ऐसा बना दिया ये गलत, ये याद रखना। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल स्केल कंप्लीट हो गया। अब आपको जो मेजर करना है वो 4.56 इसमें शो करना है। स्केल तो बन गया आपका, अब 4.56 आपको शो करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 मीटर, 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पहले आप देखो 0 के इधर मेरा मीटर वाला स्केल है, तो यहाँ 4 आएगा, मतलब इस लाइन में कहीं ना कहीं रहेगा, 4 वाले लाइन में, अभी पता नहीं कहाँ रहेगा। अब क्या है 5 डेसीमीटर, तो यहाँ पे कहीं पे डेसीमीटर आएगा, तो डेसीमीटर में 5 ये वाला है, दिस इज 5, इजंट इट। अब इस लाइन को आपको ऊपर बढ़ा देना है, ऐसा ये ऊपर गया, ये लाइन वाला इस लाइन में कहीं ना कहीं आएगा। देखो अब ये 5 को आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये 5 ऐसा कहां जुड़ा है, डायगोनली जुड़ा है 6 से। 5 कहां जुड़ा है, डायगोनली 6 से जुड़ा है। तो ये आपने लाइन बना दिया, 5 डेसीमीटर की लाइन है, बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन में कहीं ना कहीं आएगा। और सेंटीमीटर में कितना है, 6। अब देखो यहाँ ऊपर में सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 कौन सा है, ये 6। तो इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन, यहाँ से 6 गया है ना हॉरिजॉन्टली, इसको आप लास्ट तक जुड़े हो, ये 6 वाली लाइन को लास्ट तक जुड़े हो, और यहाँ से 5 को ऊपर जुड़े हो ऐसे डायगोनली। तो ये 5 वाली लाइन और ये 6 वाली लाइन जहां मिलेगी, ये आपका पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को एनसर्कल करोगे और इसी पॉइंट को फिर आगे बढ़ाओगे 4 पे, क्योंकि 4 मीटर है, तो आप आगे बढ़ाओगे 4 पे, देखो यहाँ गोला बनेगा, ये बन गया। तो ये लाइन आपका, ये जो 2 गोला मैंने दर्शाया है, इसको डार्क कर दिया हूं, दिस इज 4.56। अब ये पॉइंट को आपको, ये पॉइंट आया, इसको वर्टिकली ऊपर उठा दिया अपन, और यहां से इस पॉइंट को देखो वर्टिकली ऊपर उठाया। इस पॉइंट को अगर आप ऐसा ऊपर उठा दिए तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको ये पॉइंट मिल गया, अब आपको इसको वर्टिकली उठाना है, वर्टिकल डायमेंशनिंग करोगे तो वर्टिकल करोगे ना, दिस इज योर पॉइंट, इसका डायमेंशनिंग सीधा उठाना है वर्टिकली। तो ये ऊपर उठ गया और इसको हम लिख दिए 4.56 मीटर या 4 मीटर 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो समझ आया है स्केल? ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो अब ये स्केल के, डायगोनल स्केल का ये तरीका होता है बनाने का, ये सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं ना। तो देखिए कितना सिंपल है, जैसा आपने प्लेन स्केल बनाया था सेम वैसे ही डायगोनल स्केल, बस एक चीज आपको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। कौन सा चीज? प्लेन स्केल में आप वर्टिकल में कुछ नहीं करते थे, क्योंकि 2 यूनिट रहता था, तो एक 0 के इधर रहता था, एक 0 के इधर रहता था, ये 2 काम करते थे। अब डायगोनल में क्या है, वहां तक तो सेम है, 0 के इधर सबसे बड़ा यूनिट, 0 के इधर उससे छोटा यूनिट। अब सबसे छोटा जो यूनिट रहेगा वो वर्टिकल ही रहेगा, बस ये ध्यान देना है। और डिवाइड करने का तरीका सेम है, दोनों यूनिट्स के बीच में जितना भी गैप रहेगा उतने इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, जैसा आप इधर पहले डिवीजन को करते थे सेम वैसे ही वर्टिकल को भी करना है। क्लियर? ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Construct a diagonal scale of RF 1/32 showing yards, देखिए feet and inches to measure up to 4 yards. Represent 1.27 yards on this scale.
कितना सिंपल देखिए, सेम लॉजिक से अपन बनाएंगे जैसा पिछला क्वेश्चन बनाए थे। अब ध्यान से देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। आरएफ कितना है 1/32 है, मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है आपको 4 यार्ड्स, शो कितना करने बोला है आपको 1.27 यार्ड्स। आपका ध्यान आना चाहिए 1.27 मतलब डेसिमल के पहले 1 यूनिट, ये डेसिमल के बाद ये 1 और ये 1, तो टोटल ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, कितना यूनिट हो गया 3 यूनिट। तो इसका मतलब आपका 3 यूनिट्स का स्केल है श्योर हो गया। कौन कौन सा 3 यूनिट है, यार्ड है, फीट है और इंच। सबसे बड़ा क्या होता है हमको पता है, हमारे पास यूनिट का आपके पास आपको याद होना चाहिए 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, यही होता है। तो सबसे बड़ा होता है यार्ड, उसके बाद फीट, उसके बाद इंच। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डेसिमल में अगर आपको जो शो करना है वो बोला है तो सबसे बड़ा यूनिट उसके पीछे होना चाहिए, तो इसके पीछे क्या है यार्ड्स है। ठीक है, बड़ा यूनिट है, और मैक्सिमम लेंथ के पीछे भी बड़ा यूनिट होना चाहिए, ये भी सही है, दोनों यूनिट्स एकदम सेम है। तो यहाँ पे आज का मतलब क्वेश्चन पूरा पूरा सही है, आपको कुछ भी अब चेंज करने की जरूरत नहीं, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ड्राइंग निकालते हैं, और लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आरएफ कितना है 1/32 और मैक्सिमम लेंथ कितना है 4 यार्ड्स। अब यार्ड को आप पहले फीट में कर लो, लिखा हुआ 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट इंटू 3 कर दिया, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच इंटू 12 कर दिया, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग आएगा कितना 11.43 सेंटीमीटर। अब जैसे आपका 11.43 आ गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम 11.4 सेंटीमीटर की आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन ड्रॉ हो गया 11.4 सेंटीमीटर, जितना भी लेंथ ऑफ ड्राइंग आया। अब उसको अपन कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जितना मैक्सिमम लेंथ होता है, मैक्सिमम लेंथ 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहां सबसे बड़ा यूनिट जो उसको लिख देते हैं, क्या है सबसे बड़ा यूनिट यार्ड्स, ये हो गया यार्ड्स। अब यार्ड्स के बाद क्या होता है फीट, तो यहां लिख देते हैं उससे छोटा यूनिट जो है क्या है फीट। आरएफ कितना दिया है 1/32, ये हो गया। अब यार्ड और देखो सब प्लेन स्केल जैसा चल रहा है ना, यार्ड और फीट में कितने का अंतर होता है 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। तो ये पहले डिवीजन को आप कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे 3 इक्वल पार्ट्स, ये हो गया, इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, 3 इक्वल पार्ट्स हो गया। अब ये वर्टिकल बनाना है मुझे, ये वर्टिकल हाइट में कितना भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि यार्ड हो गया फीट हो गया, अब उससे छोटा यूनिट यहां लिखेंगे अपन, सबसे छोटा यूनिट जो है यहां लिखेंगे, क्या है उससे छोटा इंच है, तो यहां में लिख दिया देखिए इंच। ठीक है, अब मुझे पता है कि फीट और इंच में कितने का अंतर है, 1 फीट बराबर 12 इंच, तो मैं इस वाले वर्टिकल लाइन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा 12 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, आपको पता है कैसे करना है, पिछले क्वेश्चन में बताया है ना। तो ये इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गए। लाइन का लेंथ कितना भी हो सकता है, सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसको एंड पॉइंट को लो ही मत, आपको 6 इक्वल पार्ट्स करना है, आपको पता है फीट और इंच में 12 का गैप है, तो 12 इक्वल पार्ट्स करना है, तो स्केल से सिंपल मेजर कर लो 0.5 क्योंकि आपको तो इस लाइन का लेंथ पता नहीं है, कितना भी ले सकते हो, तो 0.5 स्केल से मार्क करते जाओ, 0.5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर ऐसे करके 12 पॉइंट ले लो, जहां लास्ट पॉइंट आ जाएगा उसको रोक देना, 12 पॉइंट्स हो गया, बस लिखते जाओ उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 पार्ट आ गया, ये पॉइंट एंड पॉइंट हो गया आपका। ऐसे ही 10 पार्ट में करना होता तो 0.5 स्केल से मार्क करते रहते, 10 पे आगे रोक दो लाइन, जहां 10वां पार्ट आ गया वहां लाइन को रोक दो, क्योंकि लाइन का लेंथ तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो अननेसेसरी वो एक्यूट एंगल बना के टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, सीधा स्केल से 0.5 लेते रहो, ये इक्वली आता जाएगा। क्लियर, तो ये आपका स्केल बन गया। अब आप क्या करोगे, स्केल को क्लोज करोगे, ये अपन ने बना दिया कंप्लीट स्केल। अब ये वर्टिकल लाइन सभी को जोड़ लो,
ये हो गया। ये वर्टिकली जुड़ता नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट मार्क कर लेना। 1 आया, इसको वर्टिकली ऊपर मार्क कर लो। ये 2 आया, इसको वर्टिकली ऊपर मार्क कर लो। ये 1 और 2 था, ये भी मेरा 1 और 2 आ गया ऊपर में, ठीक है। अभी इसको वर्टिकली जोड़ना नहीं है। और मेरे को पता है ये जो यहाँ पे जो आया 1 2 से लेके 12 तक, ये सबको अपन को कैसा जोड़ना है, हॉरिजॉन्टली जोड़ना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जोड़ लो। ये जुड़ गया लास्ट में, देखिए। ये सब स्केल मिनी ड्राफ्टर से इजीली हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार मिनी ड्राफ्टर का यूज करने बोलता हूँ। रोलर स्केल से क्या है, आपका एक्यूरेसी नहीं रहेगा। मिनी ड्राफ्टर में आप एक बार टाइट कर दिए तो पैरेलल ही बनेगा। एक बार लाइन बना के मिनी ड्राफ्टर को टाइट कर लो तो हर लाइन उसके पैरेलल बनेगा, तो आपका ड्राइंग का स्पीड बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा हो गया। अब क्या करना है अपन को, डायगोनल जोड़ना है। कैसा सिखाया था, नीचे का 0 को ऊपर के 1 से, तो ये नीचे के 0 को अपन ने ऊपर के 1 से जोड़ दिया। फिर 1 को 2 से जोड़ना है, ये जोड़ दिए। फिर 2 को 3 से जोड़ना है ऊपर के, 3 से जोड़ दिया, ठीक है। कितना सिंपल, देखिए डायगोनल जुड़ गया। आपको ये ध्यान रखना है कि डायगोनल का ट्रेंड ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, सब एक दूसरे के पैरेलल लेके। ये सही है, ऐसा नहीं बना देना। इसको ऊपर को नीचे से जोड़ दिए, गलत हो जाएगा, ये गलत। तो ये आपका स्केल कंप्लीट, ठीक है। अब आपको जो शो करना है वो देखिए, क्या शो करना है आपको, 1.27 यार्ड्स। इसका मतलब क्या है, 1 यार्ड 2 फीट और 7 इंचेस, ये शो करना है आपको। 1 यार्ड 2 फीट 7 इंचेस। तो ये 0 के इधर मेरा यार्ड है, ये 1 है, इस लाइन में कहीं ना कहीं आएगा। 0 के इस साइड मेरा फीट है, तो 2 फीट है, देखो 2 फीट, तो ये 2 फीट वाली लाइन है। और इंच में कितना है, 7 इंच, ये 7 इंच वाली लाइन है, तो ये 7 इंच, ये गया 7 इंच वाला लाइन, और ये 2 फीट वाला लाइन ऊपर आ रहा है। ये दोनों जहां मिल गया, ये पॉइंट है आपका। और इस पॉइंट को आगे ले जाओ 1 पे, तो ये लाइन जा रही है 1 पे, कहां, यहां पे मिल रही है। तो दिस इज योर 1.27 यार्ड्स। कितना सिंपल देखिए। अब इसको आपको वर्टिकली ऊपर उठाना है, और ये तो वर्टिकल है ही है, और इसका डायमेंशनिंग करोगे और लिखोगे 1.27 यार्ड्स, या 1 यार्ड 2 फीट 7 इंचेस, जो आपको मिली। क्लियर। तो देखिए कितना सिंपल है डायगोनल स्केल। आपने प्लेन स्केल अगर समझ लिया तो डायगोनल स्केल भी इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में अपन और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक इसको प्रैक्टिस करिए, और प्लीज गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।